नमस्कार, आर्ट ऑफ लिविंग में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आनंद राजेंद्रन जी। नमस्कार। नमस्ते। आनंद, नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद राजेंद्रन जी आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सीनियर फैकल्टी हैं। टिल नाउ आनंद जी हैज़ टच्ड मिलियंस ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग साइंटिस्ट्स ऑफ नासा, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ न्यूयॉर्क सिटी एंड द प्रोफेसर्स ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। पहला प्रश्न मैं शुरू करना चाहूँगी, धर्म स्तंभ योजना DSY क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो जिस तरह से नाम है धर्म स्तंभ योजना, तो ये समाज में जो भी धर्म है जो उसे मेंटेन करने का जिम्मेदारी सब लोगों का है बेसिकली। अगर हमारा पड़ोसी खुश नहीं तो हम खुश नहीं हो सकते। सो व्हेन एवरीबडी इन द सोसाइटी आर हैप्पी, देन ओनली वी कैन क्रिएट ए हैप्पी सोसाइटी। सो Dharmastambha Yojana is a beautiful efforts inspired by His Holiness Sri Sri Ravi Shankar Ji to establish dharma in the society, where there are hundreds of service projects which is going on. So each one of us, we can play our role to be a part of this beautiful projects of Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Ji. So राजेंद्र जी, आपको क्या लगता है हम कोई भी धर्म स्तंभ योजना से क्यों जुड़े? अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कुछ करना चाहता है लेकिन उसके पास वक्त नहीं है, बट उसका इंटेंशन है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। फिजिकली श्रमदान नहीं दे सकते हैं। सो DSY इज़ ए ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट क्रिएटेड बाय हिज होलीनेस श्री श्री रविशंकर जी। आप घर बैठ के ही वेर एवर यू आर देयर, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। So it's very simple. Basically, we have to log on to dsy.artoflink.org and click the donate button. And whatever you want to contribute, you can be a part of this. There are hundreds of projects which is happening under the DSY. River rejuvenation project, education for tens of thousands of kids. Recently, during second wave of Corona, so many COVID relief operations happened. So these are the few projects, just to name a few. That's so nice. So there's one personal question, Anand ji. Which one is your favorite project? My favorite project is this school project. Art of Living has touched more than 70,000 kids all over India. Last time in my visit to Mumbai, there was one kid who demonstrated his acrobat. He was so talented, so talented. The government of India sent him to represent India for a competition in Singapore. Only because of Art of Living, he got a platform to demonstrate all his talents basically. So many places where there are no roads, no electricity, no water connection also. In such remote places also, Art of Living has managed to open schools. And in fact, so many kids who pass out from our school are the first generation to get education. Their parents, grandparents, they didn't get education. It is only because of the efforts of Guruji they are getting education. And in the recent time, my second best project is this COVID relief project. So many people were suffering because of not having oxygen, concentrator, not getting medicines. Art of Living played a beautiful role in bridging that demand and supply, helping people who were in need of all these things. That's really very inspiring actually for so many people, I'm sure, who are watching. One more question comes, Anand ji. बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसी प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है? डू वी हैव सम मैकेनिज्म जिसके थ्रू एक ट्रांसपेरेंसी हो? बेसिकली DSY का विंग्स के अंदर सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स है। अच्छा। सो काफ़ी बार क्या होता है, नोबडी थॉट कि कोरोना सेकेंड वेव इतना बड़ा हो जाएगा। तो काफ़ी बार क्या होता है, प्रेजेंट मोमेंट में जो नीड होता है उसके लिए पैसा चाहिए होता है। जी जी। सो यूजुअली जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं वो पैसा वो प्रोजेक्ट के लिए जाता है, बट समटाइम्स में क्या होता है, नीड बेस्ड हो जाता है कि अभी बिहार में फ्लड हो गया, असम में फ्लड हो गया, वो प्रेजेंट मोमेंट में जो ज़रूरत रहता है वो पैसा वो प्रोजेक्ट के लिए जाता है। प्लस वी हैव ए वंडरफुल टीम, very experienced in handling so many projects for nearly 40 years, and they're all wonderful devotees of Guruji who have been inspired by Gurudev, and Gurudev directly involves in so many decision makings
about all this seva projects. दैट्स सो नाइस आनंद जी. एक और सवाल है, अपना रिवर रिजुविनेशन प्रोग्राम है जो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है. हम में से शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो हमारी पुरानी नदियों को रिजुविनेट ना करना चाहे. सो आपको ऐसा लगता है कि रिवर रिजुविनेशन जो प्रोजेक्ट है वो अलग अलग एरियाज में और बढ़ाने के लिए वी नीड मोर पीपल अलॉन्ग विद मोर डोनेशंस? आई रिमेंबर हमारा एक DSN प्रोग्राम था लातूर में, महाराष्ट्र में. तो उधर जो हमारा आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर्स और टीचर्स काम किए हैं, फिनोमिनल काम है वो तो. क्योंकि जो रिवर है वो रिवर सिर्फ गवर्नमेंट मैप में था. वो रिवर एक्चुअली रिवर नहीं था, वो सिर्फ गवर्नमेंट मैप में था. सो हमारा वॉलंटियर्स एंड टीचर्स सो मेनी किलोमीटर वाइज ऑलमोस्ट विड्थ ऑफ नियरली 100 फीट उसे डिग कर करके वो रिवर का वो जो भी कोर्स चले गया था वो बनाए. एंड दे वर शेयरिंग कि लास्ट टाइम जब मानसून आया उधर तो वो जो बनाए वो ऑलमोस्ट 100 फीट एंड हाइट ऑलमोस्ट अबाउट 30 फीट. एंड जब मानसून आया तो रिवर पूरा फुल हो गया एंड लातूर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 2-3 साल के लिए पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. डायरेक्टली आई हैव सीन सो मेनी villages, districts getting benefited because of this river rejuvenation project. Almost 18-19 rivers have been rejuvenated only in Maharashtra, and a few rivers in Tamil Nadu. Plus Bangalore के पास Kumudavati river है. Our volunteers every weekend they used to go to rejuvenate that. So this is a wonderful project कि better future के लिए river rejuvenation बहुत important है basically. तो आनंद जी, जो लोग भी इस रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट के लिए डोनेट करना चाहते हैं तो DSY इज द ओनली मोड? Yeah, it's very simple. All you should have an internet connection. You have to just log into dsy.artofliving.org and you have to click donate button. That's all. It's very simple. And you can donate whatever you want. Yeah. The amount is not important. Whatever you want to donate, you can be a part of that. बेसिकली आई रिमेंबर वन स्टोरी. सिल्वर जुबली का टाइम में इधर बैंगलोर में चला था इवेंट. तो एक महाराष्ट्र से एक मजदूर जो काम करता है उसका हार्डली पगार 2-3 हज़ार रुपये रहेगा मंथली. उसे 3,000 का पगार है. वो 25th ईयर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग सेलिब्रेट करने के लिए वो 3,000 रुपया पगार भी वो आके गुरुजी के पास दे दिया. सत्संग फिनिश करके जा रहे थे तब दिया. तो गुरुजी उससे देख के उसका भाव समझ गए बेसिकली कि उसे 2-3 हज़ार आता है, वो पूरा दे दिया बोल के. तो गुरुजी उसमें 100 रुपया नोट निकाले और बोले एक 100 रुपया है ना 1 करोड़ रुपया का बराबर है बोल के बाकी पैसा वो मजदूर को दे दिए बेसिकली. सो क्या डोनेट करते ये इंपॉर्टेंट नहीं, द फीलिंग बिहाइंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन ऑल द माइंड्स आर यूनाइटेड, व्हेन ऑल द माइंड्स थिंक टुगेदर, वो इंटेंशन से ही काफ़ी चीज़ हो जाता है बेसिकली. सो आनंद जी, मैंने अपनी दादी से सुना था कि अगर तुम पैसा कमाते हो तो उसकी शुद्धि के लिए दान करना बहुत ज़रूरी है. आप इसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? गुरुजी एक टॉक में बहुत बढ़िया बोलते हैं, प्राणायाम से प्राण का शुद्धि होता है, घी से अन्न का शुद्धि होता है, सत्संग से भाव का शुद्धि होता है, एंड दान देने से धन का शुद्धि होता है. काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो हम कमाते हैं काफ़ी बार बरकत नहीं आता. वो एटलीस्ट काफ़ी शास्त्रार्थ में बोला है कि जो भी हम कमाते हैं एटलीस्ट 6 to 7% वी आर टू डोनेट फॉर द सोसाइटी. सो वो करने से धन का शुद्धि होता है. मतलब आपको लगता है कि अगर आप कितना भी पैसा कमा रहे हैं 6 to 7% डोनेट करना ही चाहिए? एटलीस्ट 6 to 7% डोनेट करने से उसका काफ़ी बरकत आता है. ये मैं जो बोल रहा हूँ ये थियरी नहीं है. हमारा काफ़ी वॉलंटियर्स और टीचर्स का मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी. अभी रिसेंटली क्या हुआ कि हमारे एक टीचर को एक जॉब मिला था, बेंगलोर में है, अनुषा मूर्ति बोल के, उनको एक जॉब मिला था. तो दर्शन लाइन में DSY के लिए गुरुजी के हाथ में कुछ वो चेक पकड़ा दिए. वो ये कोविड टाइम में भी उनको, पहले उनका जॉब था इधर बेंगलोर में, अभी उनको जस्ट 3-4 दिन में उनको एक अमेरिका कंपनी से जॉब लगा एंड बेंगलोर से काम करना है, कमा रहे हैं डॉलर्स में. तो बेसिकली ये धरती किसी का भी ऋण नहीं रखता है.
ये धरती किसी का भी ऋण नहीं रखता है, एक दाना डालते हैं तो 100 दाना वापस आता है, वो तो ये तो धरती का नियम है। हमें से बहुत लोग एक्चुअली वही बात है कि सोचते बहुत कुछ हैं, पर जब भी अपनी वॉलेट में से कुछ निकालना होता है तो और 3 बार सोचते हैं, फिर लगता है नहीं यार क्या कैसे। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है डोनेशन को लेके, आप एक टीचर भी हैं, आप हज़ारों लोगों को इंस्पायर करते हैं, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो कैसे दूर करें? ये जो कंजूसी वाला एक मेंटालिटी है वो हम कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, मुझे महाभारत में ना बहुत बढ़िया एक कहानी है कर्णा का। कर्णा है, एक बार स्नान कर रहे थे एंड उनका एक गोल्डन कटोरी था, उसके ऊपर कुछ सोप पाउडर ये सब था वो, तो उसमें स्नान कर रहे थे। एक ब्राह्मण आके उनसे दान पूछते। अच्छा। तो कर्णा क्या करते हैं, वो स्नान फिनिश भी नहीं होता है, वो लेफ्ट हैंड में उनको डोनेट कर देते वो गोल्डन कटोरी। ओके। तो गुरुजी जो सब देखते रहते हैं, उन बोलते कर्णा तू तो बहुत अहंकारी है, एक ब्राह्मण आके पूछा तू डोनेशन दान तू लेफ्ट हैंड में कैसा कर सकता है, कलेक्ट नहीं है, तो आदर के साथ दान देना है। तो इसलिए करना क्या बोलते हैं, गुरुजी अगर मैं आपको हर्ट किया तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मेरा उद्देश्य वो नहीं था, मेरा उद्देश्य ये था गुरुजी कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड आने तक मेरा मन चेंज हो जाएगा, इसलिए मेरा जैसा विचार आया देना है बोल के मैं तुरंत दे दिया वो। अच्छा विचार आया कुछ करना है तुरंत कर देना है। और लास्ट टाइम हम एक बार टोरंटो गए थे कनाडा में मॉन्ट्रियल आश्रम है हमारा, तो मेडिटेशन हॉल उधर जब बना रहे थे मॉन्ट्रियल आश्रम में, तो एक लेडी, बुजुर्ग लेडी ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स ड्राइव करके गुरुजी को मिलने आई। तो आके गुरुजी वो मेडिटेशन हॉल के लिए मेरी तरफ से छोटा कंट्रीब्यूशन है। गुरुजी उसे देख के उसका भाव समझ गए, बोले इतना रात को आने का क्या ज़रूरत था, कल दे सकती थी, नेक्स्ट वीक दे सकती थी। महिला बोली गुरुजी जब मैं सुबह ध्यान कर रही थी ना, आई वॉज ओवरकम बाई वेव्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, वो मेडिटेशन हॉल के लिए कुछ ना कुछ योगदान होना ही चाहिए बोल के, मैं जैसा विचार आया कुछ करना है बोल के मैं सोची कि तुरंत कर देंगे। ये मन बहुत ज़्यादा चंचल है गुरुजी, कब बदल सकता है मालूम नहीं, इसलिए मैं सोची कि तुरंत ये पूरा कर देंगे। तो इसलिए जब भी आपको लगता है कि समाज के लिए कुछ करना है, DSN, डू समथिंग नाउ। तो एक बार एक स्टोरी याद आ रहा है, आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं। एक नदी मिडल में एक बिजनेसमैन एक रिवर क्रॉस करते रहता है, तो क्या करता है वो बोट में एक छोटा एक होल आ जाता है, तो पानी भरने लगता है वो। तो बिजनेसमैन बोलता है वो बोटमैन को, तू मुझे कुछ भी करके बचा दे, मैं ना मेरा 75% मेरा जो भी धन है तुझे दे देता हूँ। तो फिर वो बोटमैन, उसका इंटेंशन क्या था, बस सेव करने का था, तो सेव कर दिया। एंड जैसा वो लैंड के नज़दीक आ रहा था, थोड़ा टाइम के बाद बोलने का, नहीं 75% दे रहे तो मेरा वाइफ बच्चे क्या बोलेंगे, मैं 50% करता हूँ। एंड थोड़ा टाइम के बाद वो बोला नहीं 25% करता हूँ। ओके। उसके बाद बोला नहीं मैं 10% करता हूँ। तो जैसा वो लैंड के पास पहुँचा दिया, वो बोला देख बहुत फेयर रहेंगे, तो उस पार से इस पार पहुँचाने के लिए लोगों से 10 रुपया लेता है, मैं तुझे 100 रुपया दे देता हूँ। तो ऐसा मन बहुत इंटरेस्टिंग है। सो मेरा सजेशन ये है कि जैसा मन में विचार आया कुछ करना चाहिए, कर देना चाहिए। सो आनंद जी, एक और सवाल है, आप बहुत टाइम से आर्ट ऑफ लिविंग है, आपको ऐसा याद है अपने साथ कभी कुछ हुआ हो, किसी ने बोला हो नहीं डोनेशन करना चाहिए, फिर आपको लगा हो नहीं यार क्या और भी सारे काम है, डोनेशन क्यों करना है? नहीं देखिए, सेवा का डिफरेंट मोड्स है। श्रम के साथ सेवा कर सकते हैं, डोनेशन के साथ कर सकते हैं, लोगों को ये नॉलेज पर लेके आ सकते हैं। तो अपना सबका इम्पोर्टेंस है। जिसके पास टाइम है, थोड़े लोगों के पास पैसा नहीं रहता है, तो जिसके पास पैसा है उनके पास टाइम नहीं रहता है। ऐसा गुरुजी डिफरेंट एवेन्यूज क्रिएट कर दिए कि वट एवर वे यू वांट टू बी ए पार्ट ऑफ दिस, यू कैन बी ए पार्ट ऑफ इट। Whether you want to donate 10 rupees or 10 crore rupees, that is not important. The feeling behind that is very important. मतलब अगर दान करने का आप सोच रहे हैं, कुछ पुण्य काम करने का सोच रहे हैं, तो यही सबसे बढ़िया शुभ मुहूर्त यही है। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, एटलीस्ट 1 महीना का बिजनेस प्रॉफिट समाज के लिए डोनेट करना चाहिए। एंड अगर आप नौकरी कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 महीना का पगार समाज के लिए। वंडरफुल। आनंद जी, एक और सवाल है, बहुत सारे वॉलंटियर्स ग्राउंड पे काम करते हैं, कई बार वो भी लोगों को हेल्प करने जाते हैं कि अगर
किसी के पास समय नहीं है, उनको डोनेशन करना है, तो वो खुद जाके ऑफलाइन भी कर रहे थे कुछ टाइम पहले। कुछ लोगों ने ये शेयर किया है कि जब किसी और से आप बोलते हैं कि यहाँ पे दान करना चाहते हैं, आप करिए, लोग बड़ा हेजिटेट करते हैं। तो अगर आपको किसी को कन्विंस करना हो तो क्या आपको क्या लगता है, वॉलंटियर्स किस भाव से जाएं वहाँ पे, वहाँ जाके क्या बोलें, क्या क्या करना चाहिए उसके लिए, दूसरों को कैसे इंस्पायर करें डोनेट करें? जो भी वॉलंटियर्स हैं, टीचर्स हैं, कि मेरा अनुभव ये है कि लोग देने के लिए तैयार हैं। द ग्रेटेस्ट चैलेंज टू डू फंड रेजिंग फॉर एनी इंडिविजुअल इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अपने ही बाउंड्री उधर रिफ्लेक्ट होता है बेसिकली। जब भी कुछ नया करना है ऑटोमेटिकली माइंड में बाउंड्री आता है। सो वो बाउंड्री को जब ब्रेक करते हैं, ट्रांजिशन थोड़ा पेनफुल होता है। एक बार वो ट्रांजिशन ओवरकम करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आत्मविश्वास आ जाता है। जब हमारा इंटेंशन इतना प्योर है, लोग देते हैं पैसा बेसिकली। जो भी बाउंड्रीज है ये हमारा खुद का माइंड में ही है बाउंड्रीज। तो वो बाउंड्रीज क्या हैं, कैसे वो बाउंड्रीज हम ब्रेक करें? बाउंड्रीज क्या है कि वेदर लोग देंगे नहीं देंगे, एक फियर ऑफ रिजेक्शन, एंड इफ आई गेट रिजेक्टेड आई विल बी हर्ट। These 2-3 things. See, whenever you approach somebody, 5 SWs can happen. Some want to do, some won't do, some people are waiting, start working. Okay. So, if some people don't want to give, so what? That's okay. I feel that it's a great privilege to be a part of this. Plus, जब आप फंड डोनेशन के लिए जाते हैं तो अंदर से बेशर्म हो जाना चाहिए। तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी आप सोचेंगे फिर वो क्या सोचेंगे। तो हम BMW कोर्स में बोलते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये खुद का माइंड का अजम्पशन है। तो अंदर से जब फ्री हो गए, बेशर्म हो गए, तो क्या होता है, यू बिकम सो नेचुरल, स्पॉन्टेनियस एंड एंथुसियास्टिक, देन यू विल गिव 100%। सो कंफर्ट जोन से खुद को स्ट्रेच करना है कमिटमेंट जोन। जब कमिटमेंट जोन में ऑपरेट करते तो ऑटोमेटिकली आत्मविश्वास आ जाता है। बेस्ट पार्ट क्या है, व्हेनेवर यू अप्रोच समबडी फॉर फंड रेजिंग, डोंट गो एज आनंद और आशा और शिव, गो दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग श्री श्री रविशंकर जी। जब गुरु जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आत्मविश्वास आ जाता है अंदर से। सो मेरा अनुभव में ये है कि द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल टू डू फंड रेजिंग इज योर सेल्फ। यू ब्रेक दैट बाउंड्री, इट विल ऑल हैपन। तो आनंद जी, अगर जो लोग आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको कैसे इंस्पायर करें हम डोनेशन के लिए? किसे भी हम कन्विंस करने का ज़रूरत नहीं है, कन्विक्शन के साथ करना है बस। हमारा यस माइंड आगे वाला के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। जो भी इधर प्रोजेक्ट्स है, इज बाय द सोसाइटी, ऑफ द सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी। जब वो हमारा मन में क्लियर हो गया है, अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नथिंग कॉल्ड नॉन आर्ट ऑफ लिविंग। देयर आर ओनली 2 types ऑफ पीपल ऑन द सोसाइटी। One, those who have done the art of living course. Second is those who are going to do the art of living course. Jab when we share from our heart what we are actually doing, hundreds and thousands of people will come. That is my experience. One more question which is very frequent. Can people do cash donation? They can donate through UPI, internet banking, debit card, credit card. In DSY, cash donations are not allowed. Anand ji, what is the minimum donation for DSY? ऐसा कुछ मिनिमम डोनेशन ऐसा कुछ नहीं है, तो अपना भाव इम्पोर्टेंट है। If somebody wants to donate on a monthly basis, is there any procedure for DSY? Yes. Monthly recurring is possible. All we have to do is inform the bank for ECS. They will deduct that amount. It's possible. So it's easy also, they just have to. Only one time procedure. Okay. Yeah. They have to give a standing instruction to bank. That's all. That's really interesting. If somebody wants to donate regularly, they can do that also. Yeah. हम जो समाज के लिए करते हैं, दूसरों के लिए हेल्प करते हैं, कौन सा रूप में हमको आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलता है, हमको पता भी नहीं होता है। तो द गुड डीड्स व्हाट वी डू फॉर अदर्स
इन मल्टीपल वेज हमको वापस आता है। जब गुजरात में भूकंप हुआ था, उसका बहुत बड़ा घर है 3-4 फ्लोर का, तो बैठ के चाय पी रहा था तो पूरा धरती हिलने लगा। तो जो भी आजू बाजू लोग थे सब लोग छोड़ के चले गए। वो इम्पैक्ट इतना था कि 3-4 फ्लोर का घर धरती के अंदर समा गया। जो जो इसे छोड़ के गए सब लोग धरती के अंदर समा गए। ये विंडो से बाहर आके बच गया वो। तो उसे लगा कि ये 3-4 मिनट में मैं कैसा बच गया। देन वो शेयर किया था 5-6 साल पहले जब वो एरिया में एक हॉस्पिटल बना रहे थे, कंट्रीब्यूशन के लिए आए थे, जो भी आप देना चाहते हैं हॉस्पिटल के लिए आप दे सकते हैं बोल के बोले जो भी लिफ्ट का खर्चा होगा मेरे तरफ से होगा बोल के बोले। 5 साल पहले मैं लिफ्ट को डोनेट किया, अभी परमात्मा मुझे लिफ्ट करके इधर रख दिया। सो जो हम समाज को करते हैं कोसा रूप में वापस आता है वो मालूम नहीं होता। ये धरती किसी का भी ऋण नहीं रखता है। एक दाना डालते हैं तो 100 दाना वापस आता है। तो कोसा रूप में हमको प्रोटेक्शन मिलता है, ग्रेस मिलता है, मालूम नहीं होता है। सो इट इज़ ए बिग प्रिविलेज टू बी ए पार्ट ऑफ दिस DSY। सो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, हमको जो भी ग्रेटफुल होके करते हैं वही इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति ग्रेट और फुल है वही ग्रेटफुल हो सकता है जी। और एक बहुत बढ़िया एक स्टोरी याद आ रही है। तो एक बहुत बड़ा धनिक था, उसके पैसा काफ़ी पैसा था, लेकिन कोसा पैसा भी बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता था वो, क्योंकि सब बच्चे नालायक थे बेसिकली एंड अनग्रेटफुल थे। तो वो सोच रहा था, वो काफ़ी परेशान था कि बच्चे को तो नहीं छोड़ना है, लेकिन मुझे पता है मेरा उम्र भी ज़्यादा नहीं है, तो कैसा करना है बोल के। तो उसे सब लोगों को बुलाया। उसमें एक ज्योतिष ने बहुत बढ़िया आइडिया दिया कि अभी इंडिया से अमेरिका जाते हैं तो उधर डॉलर से, जापान जाते हैं तो येन है। तो ये जन्म से नेक्स्ट जन्म को क्या ट्रांसफ़र होता है, जो हम पुण्य करते हैं इधर, जो हम सेवा करते हैं, जो हम हेल्प करते हैं, ये एक ही करेंसी नेक्स्ट जन्म को आता है। सो नेक्स्ट जन्म के लिए करेंसी करने के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है DSY है। वाओ। सो आनंद जी, आज आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जो हमें देख रहे हैं, DSY धर्म स्तंभ योजना से जुड़ने के लिए हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद।